So if we talk about the energy management and auditing, so if we are talking about this subject, you know that we are going to learn about energy, reduce the consumption, or we can say instead of reducing, we can say the optimizing the energy consumption. Apart from that, yes, we all know that whatever the activities we are doing, we require energy for that, and to have that energy, we are simply converting one form of energy into another form. Now, if that conversion process is efficient, if that conversion process is efficient, then we can say that we are able to manage the energy consumption. We are managed to make sure that our energy is utilized properly. So, if you talk about the electricity and the power consumption, or we can say the energy consumption in the industries, so what are the different areas, different sectors where you can say that yes, there is an consumption of electricity? By which way the electricity is being consumed? Type in the chat box, everyone. कौन से तरीके से एनर्जी का कंजम्पशन होता है? सी यू ऑल हैव टू बी पार्टिसिपेटिंग इन द सेशन, ओके? आप अगर नींबू शरबत बना रहे हैं और आपके शक्कर जो है उसमें से कुछ शक्कर बोला कि मैं ये पानी में घुलना नहीं चाहती, तो कैसा होगा? शक्कर अच्छा बनेगा क्या? आपका शरबत अच्छा बनेगा नहीं ना? सो इन क्लास ऑल्सो यू ऑल हैव टू इन्वॉल्व योर सेल्फ, ओके? सिर्फ ऑनलाइन आके बैठना नहीं है, यू हैव टू बी टेकिंग पार्ट इन द लेक्चर, ओके? सो दैट यू आर गोइंग टू get the maximum out of it. Okay, so I hope you all are ready now, and you commit me to participate in the class. So yes, we have different machineries, different lightings, transportation of like conveyor belts. Yes, so these all are the different types of electrical consumption which we can experience in the industry. So the majority part of energy consumption in industry, or you can say in the power sector, is related with the lighting, okay? Because for a 12 hours we have the sunlight available, natural light available, but still that natural light is not accessible or not reachable to the inner sides, inner, you know, indoor जगह पे वो natural light वहाँ पे पहुँचना difficult होता है, and for that purpose we are focusing on the illumination or the lighting in the industries. Second part is that yes, HVAC, someone is rightly said air conditioning, but if we talk about the air conditioning, the majority components like compressor and the fans and the blower, so these all components using the induction motor or the energy motors, electric motors का इस्तेमाल किया जाता है. So this particular two areas, if we talk about lighting and motors, तो ये दो ऐसे मैक्सिमम एरियाज है जहां पे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफी ज्यादा हद तक हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. इफ वी आर एबल टू कन्वर्ट दैट एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी इनटू द मैकेनिकल मूवमेंट, तो इसको अगर हमने इफिशिएंट तरीके से कन्वर्ट कर दिया तो हमारा बहुत सारा एनर्जी जो कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एंड वी विल बी इन अ पोजीशन टू कंजर्व आवर एनर्जी. ओके, सो वी आर सपोज टू थिंक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग एनर्जी इफिशिएंट लाइटिंग एज वेल एज एनर्जी इफिशिएंट मोटर्स. तो इन दोनों पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एनर्जी इफिशिएंट लाइटिंग और एनर्जी इफिशिएंट मोटर और एनी अदर थिंग, और उसके सामने हम क्या कर रहे हैं, एक एडजेक्टिव लगा रहे हैं कि ये एनर्जी इफिशिएंट है. इसका मतलब क्या है, वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विथ समवन हु इज लेस इफिशिएंट और समवन हु इज हायर इफिशिएंस. मतलब क्या है, हमें अभी क्या करना है, वी आर गोइंग टू कंपेयर द डेटा. नाउ इफ वी आर हैविंग अ डेटा एंड वी आर कंपेयरिंग इट, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सिलेक्ट सम technology, we are select some activity in which we will be getting an efficient solution. Okay, perfect. So I hope this point is clear to you. Am I audible to you properly? Just let me know. Yeah, perfect. Yes, sir. Okay. So now going to the first part,
of the experiment, there are two parts in the experiment. First, we are going to study energy efficient lighting and motors, and second part is related with the power factor correction device. So these two are the very important things if you talk about the energy conservation in the industry. Okay, perfect. So if you talk about the lighting, yes, we started with the कैंडल लाइट से चालू किया था ये जर्नी लाइटिंग का. देन वी हैव अ इनकैंडेसेंट लैम्प एडिसन बाबा की कृपा से. आफ्टर दैट वी हैव CFL एंड नाउ वी हैव LED लाइट्स. सो ये चारों के प्रोसेस में व्हाट इज द डिफरेंस? तो वी आर कमिंग अप विद द इफिशिएंट सॉल्यूशंस. कैंडल का डिसएडवांटेज क्या था? कैंडल क्यों इफिशिएंट नहीं था? कैंडल लाइट क्योंकि कैंडल को हमें स्टोर करना रहता था, उसको विंड से बचाना था. What else? What do you think? कैंडल लाइटिंग का जो सिस्टम था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थे, जरा चैट बॉक्स में मुझे बताओ. आई वॉन्ट योर पार्टिसिपेशन. ओके, गो अहेड. Yes, perfect. There are many answers coming up. Yes, melting, less illumination, lower lifespan, cost, waste of wax. Okay, get over soon. फायर हैजार्ड हो सकता है. ओके, इनसिक्योरिटी. ऑल्सो डू यू थिंक दैट कि ये सब कैंडल्स को लाइट करने के लिए, उनको वहां पे जगह पे रखने के लिए, उनको कुछ रिफ्लेक्टर मैकेनिज्म लगाने के लिए, ये सारे के लिए एक्स्ट्रा मैन पावर की ऑल्सो रिक्वायरमेंट रहेगा? यस, एक्स्ट्रा मैन पावर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. यस, परफेक्ट. मूविंग अहेड. आफ्टर दैट वी हैव द इनकैंडेसेंट लैम्प. मेरे ख्याल से आपने बचपन में इसे देखा होगा या फिर नहीं भी देखा होगा, आई डोंट नो. हैव यू सीन दिस सेकंड टाइप ऑफ लैम्प, इनकैंडेसेंट लैम्प? देखा है आपने? यस सर. येलो कलर का लाइट देता है. यस, उसके क्या क्या डिसएडवांटेज है बताओ मुझे, एंड व्हाट आर द एडवांटेज. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ओवर द कैंडल. कैंडल से कंपैरिजन में क्या एडवांटेजेस है इसके? सो नाउ बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन comparing it with the candle. What will be the advantages of incandescent lamp? Just type that in the chat box. Okay, so first advantage you can say that comparing it with the candle, you don't need to store many of the lamp. जैसे कैंडल को हमें 10 कैंडल लगा के रखना पड़ता होगा स्टोरेज में, यहाँ पे सिर्फ एक लैंप है, इट्स काफी है, वो काफी है हमारे लिए. सिमिलरली लाइट इसको शुरू करने के लिए वी जस्ट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड अ स्विच. कंट्रोल करना आसान हो गया उसको, कंपेयरिंग इट विद द कैंडल. कैंडल में वी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द विंड और द जो हवा जो आती है उसको रोकना पड़ेगा. यहाँ पे ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है. व्हाट अबाउट द डिसएडवांटेजेस? ओके, सो इस तरह से लाइटिंग इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट होते गया. वी गॉट सम बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन. सो इनकैंडेसेंट लैम्प से आगे बढ़े CFL के तरफ. तो फर्स्ट कंसर्न वाज दैट कि इल्यूमिनेशन लेवल जो है वो तो हमें सेम मिल रहा है, बट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज बीइंग कंज्यूम्ड टू प्रोवाइड दैट मच अमाउंट ऑफ इल्यूमिनेशन इज ड्रास्टिकली रिड्यूस. सो जितना एनर्जी आपको समझो 80, विल जस्ट टेक दिस एग्जांपल in the slide, 60 watt incandescent लैम्प का जितना रोशनी है, सेम रोशनी आपका 14 वाट का CFL जो है वो वहां पे दे रहा है. एंड नाउ वी हैव रिसेंट LED, तो यहाँ पे 12 वैट्स बता रहा है, बट स्टिल इफ यू कंपेयर द 14 वाट CFL, nowadays 7 watt की जो LEDs है, बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, वी विल बी गेटिंग द सिमिलर illumination. Apart from that, we got another advantage over the previous versions, like the lifetime. So if we have 750 hours of lifetime for the incandescent lamp, in the LED we have 50,000 hours of the lifespan. Okay, so because of this lifespan, what is the first advantage you can say for the LED? Type it in the chat box. अगर हम लाइफ स्पैन की बात करेंगे, लाइफ हमारा इस LED लैम्प्स के ज्यादा है, तो उसका सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा? द फर्स्ट बेनिफिट इज दैट आपका जो रिप्लेसमेंट का एक्टिविटी है वो इमीडिएटली क्या हो जाएगा? यस, इट इज रिलायबल एज वेल एज
वो कॉस्ट भी इफेक्टिव होगा, एज वेल एज उसका जो रिप्लेसमेंट है वो भी आपको करना नहीं रहेगा, या फिर अगर करना भी है तो भी उसका जो शेड्यूल है वो काफी लंबा हो जाएगा, काफी दूर तक उसे हम क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं. नाउ दिस इज अनदर एग्जांपल. By replacing all the available incandescent lamp or a halogen lamp to the LED lamps, this is what we can say that an another effective way of switching to the energy efficient lighting system. So let's see, if you talk about electricity consumption, what will be the benefit of this energy efficient lighting? So first one is reduced cost. Second we have is a long life. Yes, we have seen that there is a bulb replacement also has a lower cost. Okay, so these are the third advantage you can say. Then we have reduced waste heat. Now what do you mean by waste heat? Say for example you are in a Antarctica. Antarctica देखा है सब लोगों ने फोटो में वगैरह या वीडियोस में वगैरह. So Antarctica में क्या होता है, ऑलरेडी देयर इज अ स्नो या फिर आइस, मतलब क्या है, वहां पे काफी ठंडा एनवायरनमेंट है, और वहां पे हमें क्या चाहिए, इंसानों को रहने के लिए वी रिक्वायर्ड अ हीट देयर. सो व्हाट वी डू, या फिर हमारे इधर अभी विंटर सीजन में बहुत ठंडी लगती है तो हम क्या कर लेते हैं, वी स्टार्ट अ बोनफायर, और वो शेकोटी बोलते हैं ना उसको, शेकोटी चालू करते हैं, राइट. इसका मतलब वहां पर जो हीट जनरेट होने वाली है उससे हमें बेनिफिट होने वाला है, दैट इज अ यूजफुल हीट. यू एग्री विथ मी? ओके. एंड इनकंडेंसेंट लैम्प की अगर बात करेंगे, और वो वहां पे गर्म हो रहा है, ऊपर लाइट भी दे रहा है और उसके साथ वो गर्म भी होता है, तो वो हीट को हम क्या बोलेंगे, इट्स अ वेस्ट हीट. ओके, सो वेस्ट हीट की वजह से यू रिक्वायर्ड मोर एयर कंडीशनिंग पावर टू अलाउ इट्स HVAC सिस्टम्स के ऊपर प्रेशर आएगा, उसका लोड आएगा. एंड देन नेक्स्ट इज वी विल गेट अ आइडियल लाइटिंग लेवल्स. ये अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे एनर्जी इफिशिएंट बल्ब्स एंड लाइटिंग्स के सिस्टम्स में, दैट वी विल बी गेटिंग एन आइडियल लाइटिंग लेवल्स. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट? Can anyone just want to add? What do you think by the word environmental impact? Just unmute yourself and speak. Sir, LED lights use less energy, which is good because we have to produce energy from the powerhouses. So it will reduce the environmental impact if the consumption is less, and moreover, the the heat generated is less. Okay, तो इसको थोड़ा अलग एंगल से हम लोग देखते हैं. Your point is also in the same direction. Say for example, you are saying that there are vehicles. Vehicles का काम होता है आपको एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना. Vehicles ये काम करते करते उसको जो चलने के लिए, जो काम करने के लिए उसे चाहिए पावर, एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन द आईसी इंजन. ओके, आईसी इंजन का आउटपुट क्या रहता है कि वो आपको मैकेनिकल पावर देता है, एज वेल एज इसके साथ आपके इंजन के साथ स्मोक एंड स्मॉल परसेंटेज ऑफ एश, वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ एश यू कैन से, वहां पे क्या होता है, उसका एग्जॉस्ट होता है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो हमारा एनवायरनमेंट के लिए इम्पैक्ट क्या होने वाला है, कि हम समझो 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं. तो 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के टाइम पे हमने 5 kg ऑफ CO2 एंड 5 kg ऑफ अदर टॉक्सिक गैसेस एनवायरनमेंट में रिलीज किया. तो आपका 5 किलोमीटर ट्रैवल करने का एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट क्या हुआ, कि आपको एनवायरनमेंट पे 25 kg ऑफ CO2 एंड 25 kg ऑफ अदर अनवांटेड गैसेस क्या है, एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब करने लगे. ओके, ये समझ में आया आपको? सो सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द लाइटिंग, तो लाइट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एज यू नो द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, द
फैमिलीज आर स्प्लिटिंग, से फॉर एग्जांपल किसी के घर में 2 बेटे हैं, दोनों का शादी हो गया, तो दोनों अलग अलग घर में रहने जाएंगे। इसका मतलब है जो पहले 10 वो पर्टिकुलर एरिया में समझो 100 व्हाट वी कैन से विलास या फिर 100 घर होते थे, अभी कुछ सालों बाद वो 200 हो जाएंगे। अभी 200 हाउसेस होने के बाद आपको लगता है कि 200 हाउसेस के लिए अलग से 200 टीवी लगेंगे, उनका वॉशिंग मशीन 200 हो जाएगा, देन उनका मिक्सर गीजर ये सारी चीजें डबल हो जाएंगी, राइट? गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो am I audible to you? Hello. Yes, sir. Okay, so next is reducing this environmental impact will help that particular system to have a more sustainable, we can say option with the help of energy efficient lighting and motor system. Now next is choosing the right lighting options. Yes, again very important. If we are in the IPL या फिर स्टेडियम पे अगर हम हैं और वहाँ पे कौन से टाइप के लाइटिंग्स की ज़रूरत है एंड उसके अकॉर्डिंग अगर लाइटिंग का इस्तेमाल नहीं किया है तो डेफिनेटली पर्पस भी सॉल्व नहीं होगा, और समटाइम वी विल बी यूजिंग द अंडर इल्यूमिनेशन कंडीशन विद द ओवर पावर कंजम्पशन. ओके, कैन यू गेट माय पॉइंट? अंडर इल्यूमिनेशन एंड ओवर पावर कंजम्पशन, तो ये दोनों चीजें हमें नहीं चाहिए. वी शुड गेट अ ऑप्टिमम power consumption and optimum energy which is actually used in the illumination system. तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि हम किस तरह से हमारे लाइटिंग सिस्टम को एनर्जी इफिशिएंट लाइटिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो काफी आसान है और ज्यादा भी आसान नहीं है. कैसे देखते हैं. फर्स्ट वी हैव सॉल्यूशन फॉर दिस. We can go for a HID lighting. मतलब क्या है? It's called as a high intensity lighting or high intensity discharge lighting. Whenever we have one particular source of light, उसमें से कितना illumination हमें मिलता है उसका अगर हम compare करेंगे उसके area of lighting space, then we can say that this particular lighting space is less, but the amount of light which is coming out of the window or that particular lighting scheme or lighting mechanism, then we can call it as high intensity discharge lighting. So moving ahead with this, second is solar lighting. Yes, solar lighting is applicable when we have an open terrace or we have open area where we can get the actual natural light, सोलर लाइट इनसाइड द रूम. तो वहां पे हम ये सोलर लाइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन वी हैव इज नेचुरल लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है. उसके अलग अलग तरीके होते हैं एंड वो सारे तरीकों का इस्तेमाल करके वी कैन easily convert our existing system into the energy efficient lighting system. Now, as you know that we are having different type of electronic gadgets, electronic sensors right now with us. How many of you know that there are nowadays cleaning robots also available, which will go and just clean your house along with the vacuum cleaning mechanism, and जो भी उसको कचरा वगैरह है वो सब एक जगह पे लाके वो रख देगा. तो इतना सारा ऑटोमेशन वगैरह आने के बाद क्या लाइटिंग सिस्टम को भी हमें इसमें इंक्लूड करना जरूरी है? Should we use some sensors? Should we use some mechanism by which there will be an efficient way of consuming electricity for the lighting purpose? Okay, so ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है and we can go with the lighting management technology where we can use different sensors, and occupancy sensors will help you to turn off the light if there is no any movement available. आप वहाँ पर हो ही नहीं और वहाँ पे अगर लाइट फैन ये सब चालू है तो ये लाइटिंग सेंसर जो है वो आपको क्या करेंगे? हेल्प करेंगे. गोइंग अहेड विद दिस, फर्स्ट पार्ट
of the first section, or we can say the first part of experiment is half done, that we done with the lighting system, energy efficient lighting system. इसके बारे में जब आप रिपोर्ट बनाओगे तो आपको ऊपर दिए गए सभी पॉइंट्स को वहाँ पे इंक्लूड करना है. इसके अलावा यू हैव टू टेक एन एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ. आपके घर में आप आपके लाइटिंग सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका आप एक लेआउट बना सकते हैं. से फॉर एग्जांपल वी हैव एन लाइटिंग मैकेनिज्म in which there are four light source are used, and these four light source are going to provide an illumination to the room, but the same room can be illuminated with the help of two light source, but the position of the light source should be changed. मतलब सारे कॉर्नर्स पे लाइट लगाए होंगे तो लाइट सोर्स की वजह से इल्यूमिनेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, एंड फॉर दैट पर्पस वी हैव टू फोकस ऑन द एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग सिस्टम. तो इस तरह से आपको लाइटिंग सिस्टम के ऊपर एक रिपोर्ट लिखना है, वेयर यू विल बी हैविंग एन एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग. ओके, मूविंग अहेड विद दिस, पार्ट 2 जो है फर्स्ट पार्ट का, वो है आपका एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स. सो इफ यू टॉक अबाउट द मोटर, एंड मोटर्स आर वाइडली यूज्ड इन आवर इंडस्ट्री. मोटर्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, क्या क्या पार्ट्स है, किस तरह से पावर 100% इलेक्ट्रिकल पावर इसे प्रोवाइड की जाती है. नाउ यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस and they will always be there, like I square R loss, and another one is the mechanical loss or the heat loss due to the friction. तो ये दोनों चीज़ों को कंसिडर करना है, and we'll see that input power 100% अगर दिया है, so there is a stator resistance, then we have core का iron losses, then we have stray load losses, then we have rotor resistance. Now why we are focusing on resistance? Because in resistance what will happen? It will create I square R loss. So first part of the I square loss will be happen in the stator winding, and then it will happen in rotor winding. तो आप बोलेंगे सर रोटर को तो हम सप्लाई नहीं देते हैं, या फिर अगर देते भी है तो हम उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं. तो ऐसा क्या है कि रोटर में भी जो लॉस होता है वो हमें कंसिडर करना है. रोटर में जो लॉस होता है उसको हमें इसलिए कंसिडर करना है क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट द लॉसेस विच आर इनकरिंग इन द व्हाट यू कैन से मोटर, तो मोटर का आउटपुट है हमारा जो है आपके मैकेनिकल आउटपुट से रिलेटेड. ओके, मैकेनिकल आउटपुट से अगर आपको मैकेनिकल आउटपुट नहीं मिल रहा है तो वी आर नॉट गेटिंग एक्चुअली द आउटपुट फ्रॉम द मोटर, या फिर कम मिल रहा है तो उतना परसेंट हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर लॉसेस. अगर लॉसेस जितने कम होंगे उतने हमारी मोटर जो है वो क्या होगी, इफिशिएंट होगी. आगे बढ़ते हैं. ये जो डायग्राम है यहाँ पे जो दिया है ये आपको ड्रॉ करना है आपके नोटबुक में. सो आई विल जस्ट पॉज हियर फॉर अ मोमेंट. यू हैव टू ड्रॉ दिस particular chart in which there are some methods by which we are going to understand how to improve the efficiency of the motor. So just draw it in your notebook, and once done just type done in the chat box. Okay, perfect. So we have to focus on two losses initially, that is iron loss and copper loss. Then what are the effect of this reduction
how to reduce it, and what are the different components of this. तो ये important है समझने के लिए कि हमें एनर्जी इफिशिएंट मोटर में क्या क्या चाहिए, देखने के लिए क्या क्या हमें समझना है. Then we will see what are the different technical aspects of energy efficient motor. So as you know that if it is energy efficient, definitely its life will be more, it will last longer. Then we have to select it before our project starts. Project या फिर आपका कोई भी इंडस्ट्री में कन्वर्जन करना है तो वहाँ पे हमें एनर्जी एफिशिएंट मोटर को सिलेक्ट करना है. डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल पावर प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर related with the power quality to the availability of the power. ये दोनों को कंसिडर करके हमें एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स के ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट समझने जरूरी है. Then we have the speed control related application, like if we are increasing or reducing the speed, that time we have to focus on the energy efficient options. से फॉर एग्जाम्पल पहले के टाइम पे या कुछ साल पहले यू कैन से अगर आपके घर में फैन है, आपके घर में जो फैन है उसे अगर कंट्रोल करना है, उसका स्पीड अगर कंट्रोल करना है तो रेजिस्टेंस टाइप के स्पीड कंट्रोलर यूज हुआ करते थे. इसका मतलब क्या है, आपके फैन के मोटर के साथ एक रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में ऐड किया जाता था, एंड बिकॉज ऑफ विच द फैन स्पीड कैन बी रिड्यूस्ड. फर्स्ट स्पीड अगर है, मतलब बहुत कम स्पीड पे फैन घूमेगा, तो इसका मतलब है कि बहुत सारा ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्ट किया है. बट धीरे धीरे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स में इंप्रूवमेंट होता गया, वी हैव efficient speed control mechanisms. So we have now the triac based speed controller or speed regulator. Okay, so this is how we are supposed to think on energy efficient motors. Okay, then we have to focus on starting torque also. If the load is more, load अगर ज़्यादा है तो किस तरह से हमें स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट रहेगी, एंड उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू फोकस ऑन सिलेक्टिंग द मोटर. अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर सीइंग दिस ग्राफ हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मोटर रेटिंग्स, एंड मोटर रेटिंग्स रिलेटेड विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर प्लांट और द मशीनरी. ओके, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है. नाउ ये हो गया हमारे परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. सो इफ वी हैव द एफिशिएंसी फ्रॉम 60 to 100% ऑफ द लोड फॉर आवर एनर्जी एफिशिएंट मोटर, तो ऐसा जरूरी नहीं कि एनर्जी एफिशिएंट मोटर है मतलब उसको हम ओवरलोड करें या उसको हम कम कैपेसिटी पे चलाए, ऐसा नहीं. Whatever the load will be, the energy efficient motor should be in a position to handle that much amount of mechanical load. Okay, so I hope this point is clear to you, everyone. Yes, Just type yes in the chat box, and this is how you are supposed to complete the experiment number 3 part 1. तो इसके ऊपर आपको आज जो जो समझ में आया उसको यूज करके आपको क्या करना है, रिपोर्ट बनाना है. ओके, परफेक्ट. आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थर्ड एक्सपेरिमेंट. स्टडी द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस फॉर अ गिवन लोड. सो इफ वी हैव द गिवन लोड एज अ इलेक्ट्रिक मोटर, एज यू ऑल नो दैट इलेक्ट्रिक मोटर हैज एन lagging power factor because it is having an inductive load. Now this particular motor is having
the two types of consumption. See, if we are listening the lecture, make sure you also participate it in the chat box. Okay? How you are going to participate in the chat box? अगर मैं धीरे धीरे आपको बीच बीच में सवाल पूछ रहा हूँ तो आप चैट बॉक्स में उसका जवाब दे सकते हो. सो मोटर कौन से दो टाइप का पावर कंज्यूम करती है? एक है एक्टिव पावर, दूसरा है रिएक्टिव पावर. नाउ जो एक्टिव पावर है, यस, दैट इज बीइंग directly given from the generating station to the our motor or the load basically. बट जो रिएक्टिव पावर है वो हमें अगर जनरेटिंग स्टेशन से यहाँ तक लाना है तो बीच में बहुत सारा नुकसान होता है एंड वी नीड टू सप्लाई दैट रिएक्टिव पावर फ्रॉम लोकली जनरेटेड सोर्स. तो अभी जिस तरह से हम रेजिस्टेंस को देख सकते हैं, हम इंडक्टर को देख सकते हैं, बट हम ये रिएक्टिव पावर को एक अलग तरीके से देख नहीं सकते हैं. ओके, इट इज ऑलरेडी देयर इन द सिस्टम बट वी कैनॉट separate it out, we cannot see it separately. So we are providing such devices where we can call it as a power factor correction devices. क्योंकि अगर आपके एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर के कंजम्पशन में अगर कुछ डिफरेंस आता है तो सबसे पहले अफेक्ट होने वाला जो क्वांटिटी है या पैरामीटर है वो है आपका पावर फैक्टर. एंड इफ वी आर हैविंग अ पुअर पावर फैक्टर, इट मींस आपके सिस्टम पे ऊपर उसका बर्डन आने वाला है. Now if there is a burden of the poor power factor, then there are chances that there may be some inadequate, you can say, power failures. There will be unplanned outages. There may be some failure in the grid also, which may be because of this particular poor power factor condition in one particular segment. If protection is also not there, then the condition is getting worse. Okay, so power factor correction unit हमें इंस्टॉल करना है मेजर इंडक्टिव लोड्स के साथ. देखते हैं आगे किस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं. मोटर का जो टोटल पावर रिक्वायरमेंट है वो केवीए के अंदर आता है. केवीए का पावर रिक्वायरमेंट हम सोर्स से लेते हैं, बट वो जो KVAR वाला जो कंपोनेंट है वो अगर हमने हमारे सोर्स ऑफ पावर से नहीं लिया, सप्लाई सोर्स से अगर नहीं लिया, उसके लिए हमने अलग से एक सोर्स बनाया जिसे हम कह सकते हैं कि हमारा पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस है. तो वहां पर हम बेसिकली ये जो कंपोनेंट है उसका हमारे मेन सिस्टम के ऊपर जो लोड है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज ऑन द एक्टिव पावर. एक्टिव पावर में कभी भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि एक्टिव पावर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको कंजम्पशन करना होगा. जैसे कि अभी आपके पास 5 किलोवाट का वाटर का पंप है तो उसके लिए 5 किलोवाट का पावर उसे कंज्यूम करना ही होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज दैट इज एक्टिव वर्क. वो पानी को नीचे कुएं से या बोरवेल से ऊपर लाके टंकी में डालना है, ये जो काम है वो उस मोटर को करना ही होगा. और वो कितना अमाउंट का काम कर रहा है दैट ऑल्सो इज फिक्स्ड. तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में अगर रखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि वी हैव टू सेट अप सम सोर्स ऑफ KVAR and that will help you to correct the power factor. Okay, so I hope this point is clear to you. Going ahead with this is how this our power factor correction device looks like, in which there is a capacitors of different category, different types, different size and shape, and different capacitance, or we can say different capacity. Now as per the load which is connected to the system, we will be getting the value of our capacitor in the circuit. कैपेसिटर जो भी आप यूज करने वाले हैं वो लोड के अकॉर्डिंग आपको यूज करना होगा. इट मीन्स Sir, your voice is not coming. am I audible?
नाउ Yes, sir. Yes. इसके पहले भी नहीं आ रहा था? No, sir. Just for 5 seconds. ओके, मैं सोचा कि 5-10 मिनट गए ऐसे. No, no, sir. We are able to hear you clearly. ओके ओके, परफेक्ट. नाउ बेसिकली वेयर वी वेयर, हाँ, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस हम लोग देख रहे थे. तो इस तरह से डिवाइसेस हमारे लोड के नजदीक हम कनेक्ट करते हैं एंड वी हैव अ कंट्रोलर. सो कंट्रोलर सर्किट विल बी डूइंग एंड its work of selecting the capacitor and managing the exact requirement of power fraction correction. मतलब क्या, अगर इंडक्टिव लोड है तो जितना लोड है उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, ये पर्टिकुलर गिव मी अ मोमेंट. Okay, so this is how our power factor correction device will work by selecting the proper amount of capacitors and correcting the power factor. Now, this is something very interesting to know about it. So we have different loads connected and we have to now change its power factor. So now one by one you have to draw this diagram from kilowatt 1 का ये जो ट्रायंगल है नीचे वाला वो, देन kWAR सेकेंड वाला T टोटल का, देन kWA2 का ट्रायंगल, और ये दोनों का मिला के ये ट्रायंगल जो बनता है वो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है. सो फर्स्ट दिस ट्रायंगल यू हैव टू ड्रॉ, then this one, second one, and then third one. Okay, so just draw this in your notebook and let me know. Okay, perfect. So now also make sure you take maximum from this presentation to write your report. Okay, so that you will be completing your experiment number 3 write up. Let's see what are the different categories of power factor correction devices we have. One is like we are having a capacitor bank. Capacitor bank को इस्तेमाल करके we can improve the power factor. Second way, we are using the synchronous condenser. We can say that if the overexcited synchronous machine is connected, then we also use it for improving the power factor. And third one, that is the phase advancers, where induction motors are also used as a phase advancers, where an AC exciter is provided along with it. So instead of having a lagging systems, we will be using this particular power factor correction devices to improve its efficiency. So how exactly this formula is going to be useful for improving the power factor? So first we have to consider that what is the load current and load voltage. Then we have to find its kVA demand. So kVA demand जैसे ही हमें मिल जाता है तो हमें पता चलता है कि हमें कितना kVA कंजम्पशन उस पर्टिकुलर जगह पे होने वाला है. नाउ यूजिंग दैट वैल्यू along with the power factor of the previous condition, जैसे रहता है ना बिफोर एंड आफ्टर, तो उसके जैसे ही बिफोर एंड आफ्टर हमारा क्या होता है, ये पावर फैक्टर जो है वो हमें बताता है कि इसमें से कितना परसेंटेज अमाउंट आपका एक्टिव पावर होने वाला है एंड कितना परसेंटेज अमाउंट आपका रिएक्टिव पावर होने वाला है. एंड नाउ व्हेन वी हैव दिस वैल्यूज ऑफ kVAR and kVA and kW, we will be getting the value of amount of reactive power which is required for power factor correction, and then we get the value inside like under root apparent power square minus true power square. तो अगर ये values हमें पता चला
then definitely we will be in a position to get the value of amount of capacitance to be connected in the circuit. अभी यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू डायरेक्ट सी होता है, तो सी हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते. तो फर्स्ट वी फाइंड द इम्पीडेंस, आफ्टर फाइंडिंग द इम्पीडेंस वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ आवर कैपेसिटेंस. तो इस तरह से ये पर्टिकुलर, अगर आपको ये न्यूमेरिकल आप इसको न्यूमेरिकल को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल to understand the exact amount of procedure which we will be doing to calculate the power factor correction, और कितना कैपेसिटेंस आपको कनेक्ट करना है ये आपको इसमें से पता चलेगा. So I hope this screen is visible to you properly. So start writing from the apparent power to the amount of capacitance to be added in the circuit. Okay, go ahead. This is the last numerical we will be going to see as a experimental purpose. We will be calculating the amount of capacitor to be added to correct the power factor. Okay, go ahead. Okay, so perfect. आज के लिए हम लोग इधर ही रुक जाते हैं. I will be adding an experiment number 3 to submit. तो वहाँ पे आप इसको सबमिट कर सकते हैं. Definitely I will upload that, and according to your enrollment numbers or whatever the way you are posting your assignments, आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको आपका असाइनमेंट जो है वो अपलोड करना है. Okay, for this you will be having an deadline of this week. तो नेक्स्ट लेक्चर के पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो है वो अपलोड हो जाना चाहिए.